Hello friends, welcome to my channel Tanisha's Dental World. So I'm Tanisha, I'm a third year dental student. So today we are going to cover Escherichia coli or E. coli. So guys, I've also covered content on pathology, so please check it out and like, share and subscribe, and I'll be uploading much more content in future. So please make sure that you subscribe, and also if you guys have any suggestions you can comment down below, and also you can reach me out directly with any suggestions or anything, any query. You can reach me out at Instagram or you can text me at Gmail. I'll give the link in the description box. And also guys, thank you so much for watching. Please watch the full video and enjoy. Hello friends, today we are going to cover Escherichia coli, that is E. coli. So firstly we'll talk about morphology, जिसमें we have they are gram-negative bacilli, they are non-sporing, that means they do not produce any spore, and also they are non-capsular, that means वो capsule से cover नहीं होते हैं. Plus guys, I hope you know what is gram-negative and gram-positive bacilli. If not, I'll be uploading a video जिसमें I'll tell you क्या होता है gram-negative and gram-positive bacilli and उसमें difference. So if you don't know it, please check that video out. It will be like 2-3 minute video, तो आपका ज़्यादा time भी utilize नहीं होगा. So please check it out. So yeah, so अभी I'll not be explaining. So they are also motile. And they have peritrichous flagella. So only 80% of E. coli ना they are motile. So I'll just show you कि ये दिखते कैसे हैं इनका structure. So they have DNA. They are not covered by any capsule. They have cytoplasm, cell membrane, and of course flagellum. So this is E. coli. This is morphology. I'll just tell you. Again, when we'll talk about its cultural characteristics, you know about these small colonies. So now we'll talk about cultural characteristics. They are aerobes, that means they need oxygen for their survival. Plus they are also facultative anaerobe, that means even if oxygen is not present, they can still make do. Means generally इनको ऑक्सीजन चाहिए होगा सर्वाइवल के लिए. इन केस इफ ideally तो चाहिए होगा, but in case if oxygen is not present, they can also make do because they are facultative anaerobe. And also optimum temperature is 37 degrees Celsius. That means the range will be between 10 to 40 degree, and they need time that is 18 to 24 hours. So when we talk about colonies, cultural characteristics, firstly we'll discuss about nutrient agar. इसमें क्या होता है colonies? इसमें होती है large, circular and low convex or colorless colonies, and also they are opaque on partially translucent colonies. ठीक है. एंड दे नीड, दैट मीन्स कि अगर colonies partially transparent होगी तो इसमें opaque दिखेगा मतलब. And also they need 37 degrees Celsius, I have told you, optimum temperature, and 18 hours I have told you. तो मैकॉन्की अगार की अगर बात करें, they have red और पिंक कॉलोनीज. ये क्यों होती है रेड और पिंक? बिकॉज दे आर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. जो ई कोलाई है, दे आर लैक्टोज फर्मेंटिंग, तभी ये रेड और पिंक कॉलोनीज देगा मेकॉन्की अगार में. ये मेकॉन्की अगार की खासियत है. जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है वो रेड और पिंक कलर देता है. सो नाउ वी हैव ब्लड अगार. ये सब स्ट्रेन्स के लिए नहीं है, दे आर ओनली फॉर द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स जनरली मतलब. तो इसमें क्या होता है, दे आर सराउंडेड बाय कंप्लीट जोन ऑफ हीमोलाइसिस. ये हीमोलाइसिस कैसे आता है हीमोलाइसिन से, ये हम आगे टॉक्सिन्स में डिस्कस करेंगे. नाउ वी हैव DCA, दैट इज डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार. तो इसमें क्या होता है, दे आर द कॉलोनीज, दे आर स्मॉल, दे आर पिंक एंड दे आर ओपेक. ये इसमें क्या कैसी थी न्यूट्रिएंट आकार में, लार्ज, सर्कुलर, कॉन्वेक्स, कलरलेस. एंड इसमें कैसी होगी, पिंक, स्मॉल एंड ओपेक. सो नाउ वील टॉक अबाउट बायोकेमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स ई कोलाई ये सब थोड़े केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. सो मैंने ये चीज़ प्रिपेयर की है, IMVP से, इम्पिक. ये आपको मे बी इट विल हेल्प यू रिमेंबर बेटर.
So the plus means it is showing reaction, positive reaction, and negative means नहीं कर रहा है react, या यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. सो इंडोल से ये रिएक्शन दिखाएगा, मिथाइल रेट से दिखाएगा, वीपी दैट इज वोग प्रोस्कोर इससे नहीं दिखाएगा, एंड इट विल ऑल्सो नॉट शो सिट्रेट यूटिलाइजेशन. सो H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड यूरियस, इसके साथ भी it will not produce H2S nor urease, but some variants of E. coli they might utilize citrate and also might produce H2S, but they are very low in number, so generally we call it as negative कि citrate utilization नहीं हो रही है, H2S produce नहीं हो रहा है. So now we'll cover the important topic, that is antigenic structure. It is very important. So they have 4 types of antigenic. एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एंटीजन वो होते हैं जो एंटीबॉडीज से रिएक्ट करते हैं, जिन अगेंस्ट एंटीबॉडीज आती है. दे आर लाइक फॉरेन सब्सटेंसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो बॉडी में आते हैं, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है उनको काउंटर एक्ट करने के लिए. सो दे आर नॉट गुड फॉर लाइक योर बॉडी, बट ई कोलाई में ऐसा कुछ है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज हैं. तो वो स्ट्रक्चर्स दे आर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो दे आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी. सो दे आर H एंटीजन, O एंटीजन, K एंटीजन और F एंटीजन. इसे आप कोई निमोनिक बना के भी लर्न कर सकते हैं. सो वील डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स. सो H एंटीजन जो कि है फ्लैजिलर. सो दिस इज फ्लैजिलर. ओ इस ऐसे आप सोमैटिक करके याद रख सकते हैं. ओ इसमें प्रोमिनेंट आ रही है, सोमैटिक. सो दैट इज ओ एंटीजन. सो के एंटीजन विल बी कैप्सुलर, एंड ये एफ तो याद करना इजी होगा, फिम्ब्रिल. सो एच कौन सा है? फ्लैजिलर. ओ सोमैटिक, के कैप्सुलर, एफ इज फिम्ब्रिल. सो इन सबको हम डिस्कस करेंगे. एच एंटीजन जो फ्लैजिलर होता है, दे आर थर्मोलेबाइल, दैट मीन्स हीट से वो डैमेज नहीं होते. ओ इज हीट स्टेबल. के की हम बात नहीं करेंगे. एफ दैट इज फिम्ब्रियल, वो थर्मोलेबाइल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो हम आगे बात करेंगे. देयर आर 75 H antigens. 75 H antigen, there are 173 O antigen, there are 103 K antigen. F की हम बात नहीं करेंगे. हम एक्चुअली F एंटीजन को इतना एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज में इतना कंसीडर नहीं करते हैं, बिकॉज वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है. सो हम F एंटीजन को इतना डिटेल में नहीं करेंगे. इम्पॉर्टेंट इसमें है K एंड O. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये के की एक प्रॉपर्टी है दैट इट कॉजेज ओ इन एग्लूटिनेशन. तो फर्स्टली वी नीड टू नो व्हाट इज एग्लूटिनेशन, देन वील टॉक अबाउट इन एग्लूटिनेशन. सो लिख लेती हूँ एक बार. एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन होता क्या है? ये क्लम्पिंग होती है. सो ये हम करते हैं लाइक हमें कोई एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है तो हम उसकी क्लम्पिंग करते हैं. दैट मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बाय एग्लूटिनेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन एग्लूटिनेशन, व्हेन वी ऐड दिस इन, दैट मीन्स उनको क्लम्प नहीं होने देना है. सो जो के है वो ओ एंटीजन को, दैट इज सोमैटिक एंटीजन, उसको डिस्ट्रॉय, उसको एग्लूटिनेट नहीं होने देता है. इट कॉजेज ओ एग्लूटिनेशन. तो उस ओ एग्लूटिनेशन को काउंटर एक्ट करने के लिए इट मस्ट बी बॉइल्ड और ऑटोक्लेव्ड to overcome the inagglutinability caused by K antigen. और ये K antigen जो inagglutinability increase करता है O antigen की, that's why it acts as virulence factor by protecting bacilli. So it acts as virulence factor because it protects bacilli from killing action of antibodies, and it also inhibits phagocytosis. मतलब ये ई कोलाई को
ख़त्म नहीं होने देता है बिकॉज इट कॉजेज ओ इन एग्लूटिनेशन. आई होप यू आर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए. इफ नॉट, you can ask me again in the comment section or anything. You can reach me out at Instagram or anything. So now we'll talk about factor. मैं एक बार explain कर देती हूँ. So ये क्या होता है? It causes O in agglutination. That means वो clumping नहीं होने देते हैं O antigen की, वो उसे destroy नहीं होने देते हैं. So that's why it acts as virulence factor, क्योंकि वो O को destroy नहीं होने देते. And also it protects the bacilli. That means ये बैक्टीरिया को बचा रहा है from एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि वो उसे क्लम्प नहीं होने दे रहे हैं. एंड ऑल्सो इट इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस. तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए वी बॉयल और यूज ऑटोक्लेव. सो या, सो नाउ वील डिस्कस अबाउट फैक्टर्स ऑफ पैथोजेनेसिस. आपको ये चीज़ किसी बुक कहीं नहीं मिलेगी, ये कि सरफेस एंटीजन इट ऑल्सो एक्ट एज अ फैक्टर ऑफ पैथोजेनेसिस. सो हम दो चीज़ों की बात करेंगे कि विरुलेंस, फैक्टर्स ऑफ पैथोजेनेसिस और विरुलेंस क्या इंक्रीज करता है इकोलाई की. देयर आर टू फैक्टर्स. दैट इज फर्स्ट टॉक्सिन, जो होगा हमेशा होगा, टॉक्सिन की बात हमेशा करेंगे जब हम विरुलेंस की बात करेंगे. एंड ऑल्सो सरफेस एंटीजन जो इम्पोर्टेंट है इकोलाई के लिए, दैट इज के एंटीजन और कैप्सुलर एंटीजन, क्योंकि वो इन एग्लूटिनेबिलिटी बढ़ाता है वो एंटीजन की. तो टॉक्सिन की विल टॉक अबाउट थ्री टॉक्सिन. दे आर enterotoxin, verocytotoxin and hemolysin. We'll discuss about them in detail. So enterotoxin, they are divided into two types of toxin. These are heat labile toxin and heat stable. So firstly we'll discuss about enterotoxin. So enterotoxin में firstly we have heat labile toxin. So these heat labile toxin, so that means they are destroyed by heat. They are destroyed by heat at 65 degrees Celsius for 30 minutes. So they are divided into two subunits, जो कि हैं A subunit and there are 5 identical B subunits. So A and B, A का एक होगा, B के 5 होंगे. A is active, B is binding. A for active, that's why A. B for binding, वो bind करता है, that's why B. So A का weight होगा 25,000 dalons and B का weight होगा 11,500 dalons. ये important नहीं है. So now we'll talk about A and B. 25,000 dalons मॉलिक्यूलर वेट होगा ए का, जो कि है एक्टिव. नाउ विल टॉक अबाउट बी. 11,500 dalons, जो कि है बाइंडिंग. सो नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हीट लेबाइल टॉक्सिन की, वो ये है, जो बी सब यूनिट होता है दैट इज बाइंडिंग सब यूनिट होता है जो हीट लेबाइल टॉक्सिन का. इट बाइंड्स टू द GM1 गैंग्लियोसाइड एट द ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट मीन्स कि एक गैंग्लियोसाइड होता है, एक रिसेप्टर टाइप चीज़ होती है जहाँ पे बी सब यूनिट बाइंड कर जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो इसके बाद क्या होता है कि एक बार मान लो इस जगह इंटेस्टाइन में बी बाइंड कर गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इंटेस्टाइन है और बी बाइंड कर गया, तो इससे होगा दैट दिस बाइंडिंग इट विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ए सब यूनिट. बी यहाँ बाइंड कर गया, तो इससे क्या होगा, ए की एंट्री अंदर होगी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस बाइंडिंग इट फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ सब यूनिट ए इनटू द सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज इंटेस्टाइन. सो नेक्स्टली इसके बाद क्या होगा, तो एक बार ए सब यूनिट अंदर आ गया इन द इंटेस्टाइन. सो एंट्री ऑफ दिस सब यूनिट इट एक्टिवेट्स एडिनाइल cyclase. So it will activate adenyl cyclase.
सो अभी हुआ क्या, बी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एक रिसेप्टर पे बाइंड कर गया. सो इससे क्या हुआ, ए की एंट्री इन द इंटेस्टाइन ये फैसिलिटेट हुई. सो इट विल एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस एंड एडिनाइल साइक्लेस विल कन्वर्ट ATP इनटू CAMP. सो इससे क्या होगा, इन द इंटेस्टाइन ATP जो सारा करेंसी ऑफ एनर्जी है ये सारी कन्वर्ट हो रही है इनटू साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट दैट इज CAMP. तो इससे क्या होगा, इंटेस्टाइन में CAMP की accumulation होगी. So this accumulation of CAMP in the intestinal mucosa, it initiates what? It initiates hypersecretion of electrolyte and fluid into the lumen. Hypersecretion of electrolytes and fluids. So this will cause what? This will cause watery diarrhea, of course. तो इसमें हुआ क्या, I'll just explain it again. तो बी सब यूनिट ये ज्वाइन किया, इंटेस्टाइन में बाइंड किया, तो इससे ए की इट विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ए सब यूनिट इनटू द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which will activate adenyl cyclase, and this adenyl cyclase it will convert ATP into CAMP, which will lead to CAMP accumulation, which will further lead to hypersecretion of electrolytes and fluids, जो cause करेंगे watery diarrhea. सो हमने बात की एंटेरोटॉक्सिन में हीट लेबाइल टॉक्सिन की. नाउ विल टॉक अबाउट हीट स्टेबल टॉक्सिन, जिसकी दो क्लास होती है, दैट इज ST1 and ST2. That means stable toxin 1 and stable toxin 2. So if we'll talk about that, stable toxin 1 में क्या होता है, it activates the granulate cyclase. इससे क्या होता है, ये सेम चीज़ होती है कि इसमें CGMP दैट इज ग्रेनुलाइट साइक्लेस, इसकी एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है एंड इससे हाइपर सिक्रीशन होती है, दैट टू ओनली इन द इंटेस्टाइनल सेल, बिकॉज इंटेस्टाइनल में सेल में एक खास चीज़ होती है, दैट इज अ रिसेप्टर, अ यूनिक रिसेप्टर फॉर ST1. तो इससे क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन हो जाती है फ्लूइड की, दैट विल कॉज वाटरी डायरिया. सो एक और बार एक्सप्लेन करें तो ये एक्टिवेट करता है CGMP जो हाइपर सिक्रीशन करता है एंड जो लीड करता है वाटरी डायरिया, और ये सब जल्दी होता है. इट शोज वेरी रैपिड एक्टिविटी देन LT1 दैट इज हीट लेबाइल टॉक्सिन, बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक रिसेप्टर फॉर ST1. और ये ST2 को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. इट स्टिमुलेट्स व्हाट, इट स्टिमुलेट्स द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटेस्टाइनल लूप ऑफ पिगलेट्स. इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ज़्यादा हमें खबर नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दैट, सो विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस. सो नेक्स्टली वी हैव वीरोसाइटोटॉक्सिन. ये हमें रिलेशन बताएगा ई कोलाई का विद शिगेला. हम शिगेला भी कवर करेंगे इन कमिंग वीडियो, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. सो ये वीरोसाइटोटॉक्सिन है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वीरोसाइटोटॉक्सिन 1 एंड वीरोसाइटोटॉक्सिन 2. So वीरोसाइटोटॉक्सिन 1 है, it is identical to Shigella, Shiga like toxin. So Shigella भी एक बैसिलाई है जिसके टॉक्सिन से ये वीरोसाइटोटॉक्सिन 1 बहुत आइडेंटिकल है, एंड दैट वीरोसाइटोटॉक्सिन 2 it is also biologically similar, but immunologically it is not similar, it is different. So when I talk about it is similar to Shiga like toxin, what do I mean? I mean that it reacts and it is neutralized by antibodies against शीगा टॉक्सिन. मतलब जो शीगा टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी उससे ही ये वीरोसाइटोटॉक्सिन ई कोलाई का ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ नहीं होगी, नॉट न्यूट्रलाइज, बिकॉज दे आर इम्यूनोलॉजिकली डिफरेंट, नॉट न्यूट्रलाइज्ड.
The E. coli toxin that produces these toxins, जो E. coli के variants या strains होते हैं जो इन toxin को produce करते हैं, इनको बोलते हैं Shiga toxigenic E. coli और Viro toxigenic E. coli. That means the Shigella and E. coli they are very much similar. So hemolysin की बात करें, that is the last toxin. So some strains they produce hemolysin, and these hemolysin causes lysis of RBCs. इससे क्या होता है, जो the more the virulent, if the strains they are more virulent, they'll use the iron from the lyse erythrocytes of the host. That means उसी का RBCs का lysis करके उन्हीं का iron use करेंगे वो. So thank you guys for watching, and also I have 2 topics remaining from E. coli, that is pathogenesis and lab diagnosis. उसे मैं next video में cover करूँगी. So please stay tuned, check that video out. I hope you like this video. So if you want me to give a quick recap, I'll just do it. Toxin का, because वो बहुत important है. I'll give a quick 1 minute recap. So हमने बात की enterotoxin की, जो कि है first toxin. उसके 2 parts है, heat labile and heat stable. Heat labile heat से destroy हो जाते हैं. उसके 2 subunit है A and B. So इसकी बात करें तो B subunit intestine में जाके bind कर जाते हैं, and they cause facilitation of A into the intestine, which activates the adenyl cyclase. इससे क्या होता है, adenyl cyclase से ATP CAMP में convert होता है, and it will cause CAMP accumulation, which will cause hypersecretion of fluids and electrolytes that will cause watery diarrhea. Then heat stable toxin की 2 classes होती है, 1 and 2. ये almost same तरीके से काम करता है, and it works by activating CGMP. ये डिफरेंस है, एंड ऑल्सो इट इज़ फास्टर देन हीट लेबाइल बिकॉज एक यूनिक रिसेप्टर होता है. इसकी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन. साइटोटॉक्सिन के 2 वेरिएंट्स होते हैं, 1 and 2. 1 होते हैं शीगा लाइक टॉक्सिन बिकॉज दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट शीगा, एंड सेकेंड वन इट इज़ इम्यूनोलॉजिकली डिफरेंट दो दे आर बायोलॉजिकल ही सिमिलर. ई. कोलाई जो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन को बोलते हैं शीगा टॉक्सिजेनिक ई. कोलाई. तो लास्ट टॉक्सिन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज hemolysin. It produces hemolysis of RBCs. The more the virulent the strain, they will also use iron from lyse erythrocytes of the host. So thank you guys, and also thank you guys for watching. And also if you need these notes you can just comment or mail me. The mail I'll give in the description box. That is tanishaguptabds@gmail.com. Thank you.